morning, students. Today we will learn something more about the details of a cell, what it is made up of, and the various parts. Cell structure and function. You have learnt in class 7th about the various systems like the digestive system, circulatory system, excretory system, respiratory system. The digestive system has organs like liver, pancreas, stomach. These organs are made up of tissues and the tissues are made up of cell. The group of cell having the same function make up the tissue. So we can say that the cell is the living organ. Cell in a living organism is the basic structural unit. अब सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल जो ज़्यादातर होता है इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. Cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. The cell membrane is also called the plasma membrane. तो cell membrane का दूसरा नाम plasma membrane है. The cell membrane or the plasma membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of only certain substances or materials both inward and outward. तो जो भी सब्सटेंसेस अंदर और बाहर होते हैं सेल के वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और कुछ ही सब्सटेंस अंदर बाहर हो सकते हैं. अब एक एक्टिविटी लेनी है जिसमें आपको एक स्लाइड बनानी है ऑनियन पील की. इसमें आपको एक ऑनियन पील के जो ऑनियन बल्ब होता है उसके ऊपर एक ड्राई पिंक कवर होता है उसको रिमूव करना पड़ता है. उसके बाद में उसके नीचे की ओर वाइट कलर के वाइट लेयर्स होते हैं. फोर्सेप्स के द्वारा आपको निकाल के फिर उसको प्लेस करना है ग्लास स्लाइड के ऊपर. द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप. Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip on it, you have to ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under the microscope. Now you will see that there is a boundary. That boundary is called the cell membrane. सबसे बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होता है. अंदर आपको एक डेंस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है जो सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सेल वॉल. The cell wall is found in addition to the cell membrane in plant cells only. सिर्फ plant cell में cell wall होता है. This additional layer of cell wall is found to surround the cell membrane as the plants need protection against variation of temperature, high speed winds, atmospheric moisture. क्यों होता है ये? क्योंकि प्लांट्स एक्सपोज्ड होते हैं ये वेरिएशंस के लिए और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए एक एडिशनल लेयर चाहिए रहती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. You can also prepare a peel of Tradescantia, Elodia and Rohia as you have done for onion peel. Now coming to this other one, that is you have to prepare the slide of human cheek cell. You have to take a toothpick or a matchstick with the tip broken. Now scrape the inside of the cheek cell, the cheeks, so that without the hurting it. Now place a drop of water on the glass slide. Add a drop of iodine or methylene blue solution. Place a cover slip over it and observe it under the microscope. यहाँ पर क्या करना है, अंदर चीक्स के अंदर से आपको स्क्रैप करना है, टूथपिक को तोड़ के संभाल के करना, आपको चोट नहीं पहुंचानी है अपने. और इसको जैसे ही आप निकालोगे तो एक ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के उसके बाद में आयोडीन या मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डाल के फिर उसके ऊपर कवर स्लिप डाल के उसे ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के नीचे. इस टाइप के चीक सेल्स दिखते हैं. यू मे नोटिस दैट देयर आर मेनी सेल्स. यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है. ये एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है. ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस that is found between the nucleus and the cell membrane. It is a jelly-like substance which is present between the cell membrane and the nucleus. और इसमें आप देखेंगे there are going to be various organelles
दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज ये सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस सब सेंट्रल स्फेरिकल बॉडी लाइक होता है, डेंस होता है, इजीली स्टेन हो जाता है, और ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। इट इज जनरली spherical and it is located in the center of the cell. It can be stained and seen easily under the microscope. The nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. तो न्यूक्लियस की बाहर की ओर, जैसे सेल में बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूक्लियस के बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिससे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग होता है। This nuclear membrane is porous and allows the movement of certain materials in and out of the nucleus from the cytoplasm. अब न्यूक्लियस में देखेंगे, न्यूक्लियस व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन shows a spherical body called the nucleolus surrounded by nucleoplasm. There are thread-like structures called chromosomes which can be seen only during the cell division. और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस है, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जो बाद में डेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस, these chromosomes carry the genes. क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं and which help in the inheritance or transfer of characters from parents to the offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divides. Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as a control center of activities of the cell. The entire content of the living cell is known as protoplasm. So protoplasm consists of cytoplasm and the nucleus, और हम लोग प्रोटोप्लाज्म को लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल कहते हैं। तो आपको ध्यान देनी चाहिए, जो न्यूक्लियस होता है वो सारे कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और दूसरी बात है, जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पहले क्रोमैटिन फाइबर होता है, उनमें जीन्स होते हैं, और जीन्स जो रहते हैं वो इनहेरिटेंस के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जीन्स के बारे में हम जान लेते हैं। जीन्स जो रहते हैं वो क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं एंड दे आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. Example, the color of the eyes, color of the hair, type of hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. अब coming to prokaryotic and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्योंकि इनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ऑन द अदर हैंड मेनी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपने ह्यूमन चीक सेल्स में पाया, अनियन सेल्स हैं प्लांट्स में, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन को छोड़ के और भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट है, और हैव गॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. दैट इज दे हैव अ न्यूक्लियर proper nuclear membrane. Such cells are called eukaryotic cell. Eu means true, karyon means nucleus. Now coming to वैक्यूल्स. आपने देखा होगा जब अनियन सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें ब्लैंक लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं. ये ब्लैंक लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को वैक्यूल कहते हैं. एनिमल सेल्स में ये कम मात्रा में होते हैं. प्लास्टिड्स आते हैं. आप देखेंगे सेल, जब प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें स्मॉल कलर्ड बॉडीज होते हैं. इन द सेल्स ऑफ ट्रेडिस्केंशिया लीफ they are scattered in the cytoplasm and these are called plastids. They can be of green color as they have a green pigment called chlorophyll. ये जो जिनके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट होता है वो टाइप के प्लास्टिड्स को हम लोग
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. देयर कैन बी सम कलर्ड प्लास्टिड्स विच इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट. नाउ कंपेयरिंग द प्लांट एंड द एनिमल सेल, वी कैन सी इन द प्लांट सेल, सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में वैक्यूल्स होता है. जो प्लांट सेल में होता है वो लार्ज वैक्यूल होता है, जो एनिमल सेल में होता है वो छोटे वैक्यूल होते हैं. प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल whereas they are absent in the animal cell. ये एक कंपैरिजन टेबल है. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ. सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ. साइटोप्लाज्म दोनों में है. Plastids only present in the plant cell, and vacuole is large in case of plant cell, whereas in case of animal cell it is small. Thank you.